हाँ जी दोस्तों, देखो हम कर रहे हैं रिडिस्ट्रीब्यूशन, इतने सारे राउटर्स में यूज़ कर रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग इतने सारे राउटर्स ऊपर लैब में जाके रियल डिवाइसेस भी यूज़ करोगे। आप लोग उसको थोड़े थोड़े छोटे छोटे पार्ट्स में करना है, ठीक है। एक बार ई आई जी आर पी को ओ एस पी एफ से, एक बार ओ एस पी एफ को रेप से, एक बार रेप को ई आई जी आर पी से, इस तरह से करना। सही है ना। अब देखो नेटवर्क डायग्राम में क्या कर रहे हैं हम, R1 से R2 यहाँ पर चल रहा है दोस्त 12.110/30 का नेटवर्क, ठीक है। और ये है मेरा ओ एस पी एफ 100 एरिया 0 में। ओ एस पी एफ के सब राउटर्स में मैं ओ एस पी एफ 100 ही चलाऊंगा, ठीक है, ताकि कोई कंफ्यूजन ज़्यादा, कॉम्प्लेक्सिटी जितनी क्रिएट होंगी उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी समझने में, ठीक है। ओ एस पी एफ 100 एरिया 1, ओ एस पी एफ 100 एरिया 13, एरिया 51। इधर फिर रिप वर्जन 2, रिप वर्जन 1, ई आई जी आर पी 200, ई आई जी आर पी 100, ठीक है। अब मेरे को पहली बात, जब भी हम रीडिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, रीडिस्ट्रीब्यूशन इज ऑलवेज डन ऑन द राउटर which is running between the two different routing domains, right? For example, router 1, its one leg is in OSPF domain and one leg is in RIP domain. So I have to do the redistribution here, right? Here, router 8, its one leg is in RIP version 2, one leg is in RIP version 1, so I have to do the redistribution here. I have to do the redistribution on router 7 because one is RIP and one is EIGRP 200, and on router 6 one is EIGRP 200 and one is 100, right or wrong? And always remember, okay, here the network of 65 on router 5, if I'm putting the network of 65 in EIGRP 100, here also it should be EIGRP 100, right? राउटर वन पे ऐसा मत करना कि आई जी आर पी के अंदर यू आर, ओ एस पी एफ के अंदर यू आर एडवर्टाइजिंग 12 एंड 18 एज वेल। नो, 18 has to be advertised in RIP version 2 and 12 has to be advertised in OSPF 100 area 0. Done. And then see, तो यहाँ पर राउटर 5 पे OSPF versus EIGRP 100, right? Now friends, यहाँ से area 1 is connected with area 0, it's fine, but area 13 is not connected with area 0, so I have to create a virtual link. अब virtual link मैं किस में create करूँगा ये समझो जरा। राउटर 3 का, राइट, राउटर 3 का वन लेग इज इन एरिया 100 एंड अदर लेग इज इन एरिया 1, एंड एरिया 0 और एरिया 13 के बीच में देर इज एरिया 1, हाँ या ना। so I have to start it from an ABR always. Router 12 would be an ABR or not, because its one leg is in a regular area and one leg is in a backbone area, हाँ है ना। नाउ राउटर 2 से स्टार्ट करके मैं राउटर 3 तक चलूंगा, ओके। नाउ राउटर 3 इज आल्सो इन एबीआर बिकॉज ऑफ वर्चुअल लिंक, हाँ है ना। नाउ एरिया 51 is running between is area 51 I want to communicate with area 0, so that means he is an ABR or not, router 3, and बीच में कौन सा एरिया 13, so I have to create a virtual link between router 3 and router 4 as well. So on the same router now there are two virtual links, agree or not agree? Now router 4 is will also become an ABR, and router 5 is an ASBR because its one leg is in OSP and one leg is in EIGRP, or router 1 is also an ASBR because one leg is area 0 and one leg is reversion to other domain. So R1 and R5 would be the ASBRs, autonomous system boundary routers. So first of all let's do the IP addressing here, right? Okay, in IP addressing आई होप आप सबको आईपी एड्रेसिंग तो अभी तक करनी प्रॉपर आती है, एंड आई एम श्योर कि आप सबको आती है, हाँ है ना। गुड, देन फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरफेस सीरियल 10 on router 1 I am, and IP address would be 12.111/30, right? No shutdown. And also interface serial 11, IP address would be 18.111/30, no shutdown. And also interface loopback 1, IP address would be 1111/32. That's on router 1. Now router 2, simple, interface serial 10 पर address would be 12.112/30, no shutdown. And on interface serial 11, IP address would be 23.111/30, no shutdown. और एक लूप बैक भी क्रिएट कर लेते हैं /32 exit. डन। अब चलते हैं राउटर 3 पर।
interface serial 11, address would be 23112/30, no shutdown. And on serial 10, IP address of 34111/30, no shutdown. और एक लूप बैक बना लेते हैं 3333/32। राउटर 3 भी हो गया। चलो फिर राउटर 4 पे चलते हैं। राउटर 4 पे हैव इज इंटरफेस serial 10/34112/30, no shutdown. And also on interface serial 11, IP address would be 45.111, no shutdown. And on loopback 1, IP is 4444/32 exit. Done on 4 routers. Now it's the time for 5th router. हाँ जी, interface serial 11, address would be 45.112/30, no shutdown. And on serial 10, address is 65.112/30, no shutdown. And loopback पे लो 5 राउटर हो गए। अब ये है छठा राउटर, इस पे चलते हैं। सीरियल 10 IP address is 65.111/30, no shutdown. और सीरियल 11 पर 76.112/30, no shutdown. और एक लूप बैक भी बना लेते हैं। डन है जी 6 राउटर। चलो फिर 7th पे चलते हैं। ग्लोबल मोड, इंटरफेस सीरियल 11 76.111 एंड सीरियल 10 पर 17.112 नहीं /8 है दोस्त इस पे। लो जी राउटर 7 पे हो गया और साथ में एक इस पे लूप बैक भी बना लो। अब इस पे चाहे मैं इसको ये भी दूं तब भी वो उसको एडवर्टाइज को /8 ही करेगा बिकॉज ये रिप वर्जन 1 है ना। तो क्या देना चाहते हो /8 और /32? चलो /32 ही देके देखते हैं क्या होता है। ठीक है एंड देन गो टू राउटर 8, द लास्ट राउटर। हाँ जी, ग्लोबल मोड, इंटरफेस सीरियल 11, IP address is 18.112/30, no shutdown. Serial 10 17.111/8, no shutdown. और एक लूप बैक बना लेते हैं। डन है जी। लो वी आर डन विद द IP addressing. Now first of all देखो let's do this कि we need to do the routing protocols, right? So for the routing protocols I want your active participation. ठीक है, active participation of everyone. मैं खुद वही कमांड लिखूंगा जो आप लोग मुझे बोलो। राउटिंग प्रोटोकॉल्स हम सभी को इम्प्लीमेंट करने आते हैं, हाँ है ना। तो जो कमांड आप बोलोगे मैं वही इम्प्लीमेंट करूंगा। बोलो फिर राउटर 1 पे। राउटर OSPF 100 नेटवर्क ऑफ
/30 है तो मतलब 0.0.0.3 हो गया ना। ओके देन एरिया 0। अच्छा और कुछ? और कुछ? हाँ एग्जिट और कुछ? हाँ राउटर ट्रिप वर्जन 2 नो ऑटो समरी नेटवर्क ऑफ दैट्स इट। ओके अब चेक कर लो कि क्या इस राउटर पे दो राउटिंग प्रोटोकॉल चल रहे हैं। डू शो आईपी प्रोटोकॉल्स। सी है OSPF 100 राउटर आईडी इज 1111 मैक्सिमम पाथ 4 फॉर 1 एंड फॉर 12 दोनों नेटवर्क चल रहे हैं ना। एंड सी रेफरेंस बैंडविड्थ यूनिट इज 100 Mbps। डन। और यहाँ पर रिप भी चल रहा है। रिप के टाइमर्स वगैरह सब कुछ सेम है सिर्फ एक ओनली ऑन द सिंगल इंटरफेस इज रनिंग एंड द नेटवर्क हैज बीन एडवर्टाइज्ड एंड ऑटोमेटिक नेटवर्क समराइजेशन इज नॉट इन इफेक्ट। डन। लो जी राउटर 1 पे ऑल द थिंग्स आर डन दैट वी एक्चुअली वांटेड। नाउ राउटर 2 बोलो। OSPF ओके नेटवर्क हाँ जीरो। देखो 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 राउटर 1 पे यू हैव एडवर्टाइज दैट द नेटवर्क ऑफ 12 शुड बी इन एरिया 0 तो राउटर 2 पे भी तो नेटवर्क ऑफ 12 शुड बी इन एरिया 0 ओनली है सर। और अगर आप इसको 1 दे भी दे दो तो देखना क्या होगा। इट विल शो यू एरिया आईडी मिसमैच। सी error received invalid packet mismatch area id from backbone area must be virtual but not found from this, right? So simply I have to say no to this and I have to say area 0। अब दिखाएगा कि adjacency हो चुकी है fully adjacent state it will show। हो गया adjacency change process 100 neighbor from loading to full loading done। डन है गुड। अब इसी पे नेटवर्क और कौन सा है 2222 हाँ 1 और कुछ दैट्स इट। हाँ वर्चुअलिंग में बनाएंगे रुक जाओ कोई बात नहीं आएंगे। टिकट थोड़ी लेनी है वापस आने के लिए। हाँ जी हाँ गुड डन डन चलो नाउ लेट्स मूव टू राउटर 4। हाँ लुक बैक भी दे दिया दोस्त आंखें और दिमाग खोल लो। राउटर OSPF 100 नेटवर्क ऑफ गुड गुड डन वेरी गुड। अब exit let's go to router 5। हाँ गुड अभी दिखा लो एडजेसेंसी आप हो गई ना। राउटर ARGRP 100 नो ऑटो समरी मैंने पहले कर दिया। नेटवर्क 5555 डन है। राउटर 5 पे भी यू कैन चेक वेदर द टू आर रनिंग और नॉट। डू शो IP
protocol. Yes, OSPF 100 and EIGRP 100 as well. डन है दोनों चीज? गुड. अब राउटर 6 बोल लो. राउटर EIGRP 100. गुड. नो ऑटो समरी. हाँ चल. Router EIGRP 200. Those 6666 and 76. They both are in EIGRP number 200 AS number. No auto summary. That's it. Check कर लो. Do show IP protocol. कोई बात नहीं, गलतियां हो जाती हैं. EIGRP 100 and EIGRP 200 दोनों differently it's running. That means these are the two different routing protocols and we have to do the redistribution among them. देखो एक चीज हमेशा याद रखना. If on any router it show you that these routing protocol is, देखो here routing protocol is EIGRP 100 and then routing protocol is EIGRP 200. That means it is showing the two different routing protocols, na? Yes, sir. It is simply saying that these two have no relevance to each other. So, simply speaking, we have to do the redistribution. On whichever the router, you can see that show IP protocol is running. It's showing you two multiple routing protocols more than one. Then simply you have to do the redistribution between them. Done है? कोई प्रॉब्लम इसमें? गुड. देन राउटर 7. यस. हाँ गुड. लो डन. ओके. और अब चले राउटर 8 पर. लास्ट राउटर रेप वर्जन 1. नो, अरे वर्जन 1 में नो ऑटो समरी की जरूरत नहीं है, फिर भी लिख देता हूँ. वहां भी जरूरत नहीं थी, मैंने फिर भी लिख दिया था. अब गुड. राउटर वर्जन 2 18110 and also network of done है. Do show IP protocols. RIP sending to अब बताओ क्या करूं. डू शो हिस्ट्री. मैंने क्या करा, राउटर रेप वर्जन 1 17 को एडवर्टाइज करा. फिर मैंने करा राउटर रेप वर्जन 2 मैंने 18 और 8 को एडवर्टाइज करा, है ना. तो फिर जो वर्जन 2 में मैंने 18 और 8 को एडवर्टाइज करा था, है ना. 18 और 8 को एडवर्टाइज करा था. 17 तो अपने आप ही इसके अंदर आ गया. क्यों आ गया? Because दोस्त on a single router either version 1 will run or version 2 will run. Clear or not? समझे बात को? या तो उस पे वर्जन 1 रन होगा या उस पे वर्जन 2 रन होगा. अब देखो राउटर 7 पे 7 का नेटवर्क और 17 का नेटवर्क है वर्जन 1 में, बट राउटर 8 पर वर्जन किस में है? 2 में. 17 का नेटवर्क ही वर्जन 2 में है, हाँ है ना. राइट. दिस सीरियल 10 सी राउटर 8 पर serial 10 पर it's running is version 2, right or wrong? It can send to version 2 and it can receive from version 2 as well. Yes or no?
but what I want is कि from serial 10 it should be able to send to version 1 as well, and it should be able to receive from version 1 as well. हाँ है ना? So see what I will do. Interface serial 1/0 IP rip send version 1 2 दोनों कर दिए, और फिर IP rip रिसीव वर्जन 1 एंड 2 दोनों कर दिए. अब देख लो, डू शो IP प्रोटोकॉल, इट कैन सेंड टू वर्जन 1 एंड 2 एंड कैन रिसीव फ्रॉम वर्जन 1 एंड 2 बोथ. हाँ है ना? तो ये कमांड क्लियर हुई है. मैंने क्या करा था, IP rip send version 1 to IP rip receive version 1 to दोनों, right? Always remember that on a single router we cannot run two different versions of rip. ठीक है? And here now on router 7 as well, serial 10 should be able to send and receive from version 1 and 2 and should be able to receive and send to version 2 as well. कुछ समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? पक्का? हाँ, R7 पे भी मेरे को यही चीज करनी है कि भाई ये भी वर्जन 1 और 2 दोनों को सेंड कर सके, दोनों को रिसीव भी कर सके. बिकॉज इफ ही इज सेंडिंग टू 1 and 2 and he is receiving from 1 and 2, but he cannot, right? So on router 7 I will go and check it out. Do show IP protocol about the RIP serial 10 can send and receive from version 1 only. हाँ या ना? So I need to do it right. Interface serial 10 IP RIP send version 1 2 and receive version 1 and 2. Done or not? Now friends, you can check it out. Do show IP protocol. It's all right. Good. तो सबसे पहले दोस्त हमने रेप के अंदर ये छोटा सा जो कार्यक्रम है कि वर्जन 1 2 को कैसे रिसीव करेगा, 2 1 को कैसे रिसीव करेगा, वो हमने कर दिया. हाँ, किसके अंदर? हाँ, वो इसको रिसीव तो वो करेगा ही करेगा. हाँ, बट स्टिल जब ये सेंड ये रिसीव कर रहा है दोनों को और सेंड भी कर सकता है, तो ये तो सिर्फ 1 को ही सेंड कर सकता है ना. तो राउटर 7 कैनॉट सेंड टू वर्जन 2. सो इट इज रिक्वायर्ड बोथ द वेज. वो एक्सेप्ट तो कर लेगा, लेकिन फिर रिवर्स राउट तो जनरेट नहीं करेगा ना. इसने एक्सेप्ट तो कर लिया, लेकिन अगर राउटर 7 राउटर 8 पर जाना चाहता है तो इट हैज टू गो दिस वे. Router 7 wants to go to router 8, it directly cannot go, so it has to go via R6 R5 R4 R3 R2 R1 R7. हाँ, लेकिन यहां से नहीं करेगा भाई, वहां से करेगा. अगर मैं यहां पर नहीं लिखूंगा कि सेंड वर्जन 1 एंड 2, तो ये सिर्फ वर्जन 1 को सेंड करेगा करेगा और ये वर्जन 1 और 2 दोनों को सेंड कर सकता है. तो ये सेंड तो कर सकता है और ये रिसीव भी कर सकता है, लेकिन ये बंदा वर्जन 1 को ही सिर्फ रिसीव कर सकता है. तो यहां से जब वर्जन 2 की अपडेट आ रही है वो उसको कैसे लेगा? और दूसरी बात, जब ये जाना चाहता है तो ये राउटर 7 कैनॉट सेंड टू वर्जन 2. यस और नो? तो राउटर 7 wants to go to router 8, it has to go via R6 R5 R4 R3 R2 R1 then R8. तो रिवर्स राउट जनरेट नहीं हो पाएगा ना उसका, इसलिए. हाँ या ना बोला कर, गर्दन मत हिलाएगा. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल राउटर 1 पे वन साइड इट्स रनिंग इज OSPF एंड वन साइड इट्स रनिंग इज RIP. हाँ है ना? तो फ्रेंड्स सी व्हाट वी डू इन द रीडिस्ट्रीब्यूशन. फर्स्ट ऑफ ऑल जो RIP है, RIP इज वर्किंग ऑन विच एल्गोरिथम? Bellman-Ford algorithm, right? What is the metric value for RIP? Hop count is the metric, right? And what is the metric for OSPF? Cost, right? So friends, what I will do is I will go in the OSPF. In the OSPF, मैं RIP को बताऊंगा कि what OSPF likes. OSPF के अंदर RIP को बता रहा हूं कि RIP को OSPF के अंदर RIP को बता रहा हूं कि OSPF को क्या पसंद है. OSPF works on the basis of cost. Clear or not clear? Go to router 1 and then router OSPF 100. Right or wrong? Redistribute question mark.
What do you want here? Rip. Okay. Redistribute rip. Now, I told you I have to define the metric. है ना? Now friends, see, if I want to define the metric, metric is just a seed metric. Seed metric which is by default there. By default seed metric is 20. ठीक है? But now the thing is, if I define here the metric, then don't you think I have to define the metric for each and every network? हर एक नेटवर्क के लिए मेरे को मेट्रिक वैल्यू बतानी पड़ेगी ना? That would be a stupidity. And also there are number of sub networks. Calculating the cost for every sub network and then letting it know, it's not a good idea. So rather than that, I will simply say redistribute rip. All the subnets have been redistributed. Clear or not clear? All the subnetworks have been redistributed simply. यहां पर आप सिर्फ एंटर भी करोगे तो इट्स फाइन. समझ में आया कुछ? आया कुछ? अब do show IP route. अब OSPF में, that means router 1 should get the network of 17 as well. 7 का नेटवर्क आ रहा है? 17 का नेटवर्क भी आ रहा है? नाउ 17 का नेटवर्क डायरेक्टली इट्स लर्निंग वाया रिप, बिकॉज इस राउटर पे रिप भी तो चल रहा है ना. बट इट वोंट बी एबल टू एडवर्टाइज फर्दर अगर मैं रिडिस्ट्रीब्यूशन ना करूं तो. लेकिन सिंस मैंने रिडिस्ट्रीब्यूशन कर दिया है तो R2 पर जाना. 17 का नेटवर्क कॉस्ट कितनी है? 20. अच्छा जी. और 1 के नेटवर्क के लिए कॉस्ट कितनी है? 65. That means कि router 2 wants to go to this network. The cost is 65. And if our router 2 wants to go to this network, the cost is 20. Don't you think that's insane? Don't you think ये बेवकूफ़ी है? भाई देखो, राउटर 2 से यहां तक जाने के लिए कॉस्ट इज, एक सीरियल लिंक की कॉस्ट 64 होती है. 64 प्लस उसमें लूप बैक की कॉस्ट होती है 1. हाँ है ना? तो टोटल कॉस्ट इज 65. So if it want to go, reach here 7, the cost should be 64 plus 64 plus 64 plus 1. That means कितना हो गया? 64 plus 64 plus 64 plus 1, 193. राइट और रॉन्ग? बट ये कितनी दिखा रहा है? 20. ये क्या मजा आ गया? फ्रेंड्स, द रीजन फॉर दैट इज बिकॉज द this is called the seed metric. This is called the seed metric, right? Seed metric by default is 20. जो भी उसको redistributed routes learn होंगे ना, by default it will take the metric as 20. But I don't want 20. I want to see the real metric. हाँ है ना? ये क्या दिखा रहा है? E2. What is E2? नहीं. हाँ. OSPF external type 2. हाँ है ना? Okay. All the redistributed routes are coming via E2. हाँ है ना? Let's make it right. Go back to R1. Now, जो मैंने redistribution करा था ना, इसको तो कर दो नो. और अब करो redistribute rip subnets. Then question mark. Metric type, वो metric type ही था ना? Let's do the metric type. By default it was 2, है ना? External type 2 matrix. In external type 2 matrix there is a seed metric. By default seed metric is 20. But if I say external type 1 metric, तो वो मुझे दिखाएगा क्या? जो real cost है it will calculate. See, metric type 1, enter. Done है? Now go to router 2 and लो, E1 आ गया. The cost is, and for the network of 7 the cost is out. इसको ज़्यादा दिखानी चाहिए यार. ये इस वाली कॉस्ट को काउंट नहीं कर रहा ना फिर. छोड़ो छोड़ो, इतना ही सही.
अब मैंने एक तरफ तो रिडिस्ट्रीब्यूट कर दिया, हाँ है ना। तो दोस्त OSPF के पास तो OSPF हैज लर्न द राउट्स फॉर रिप, एग्री और नॉट एग्री? मैट्रिक टाइप 1 से क्या हुआ है समझ में आया? बट नाउ द थिंग इज कि इट शुड सी, हाँ ये कॉस्ट 24 क्यों आ रही है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की कॉस्ट तो वो दिखा रहा है 64 है ना, और 64 के आगे वो सीड मैट्रिक 20 को काउंट कर रहा है। ये वाला 64 तो दिखा रहा है जो उसके खुद के डोमेन में है, एंड आफ्टर दैट इट विल जस्ट ऐड द वैल्यू 20, दैट्स वाई। सही है। अब देखो R2 पे R2 इज गेटिंग द राउट्स, बट क्या R8 पर राउट्स आ रहे होंगे? डू शो IP राउट, नहीं आ रहे ना, सिर्फ रिप के ही राउट्स आ रहे हैं ना अभी भी इसके पास, बट आई वांट द राउट्स ऑफ OSPF एज वेल। तो दोस्त R1 पे ही आई हैव रिडिस्ट्रीब्यूटेड द रिप विद OSPF। नाउ आई विल से राउटर रिप redistribute OSPF। OSPF की प्रोसेस आईडी हमने क्या यूज करी हुई है? 100। एंड देन here now friends I will define the metric, right? And the metric is 0 to 16 डिफॉल्ट मेट्रिक या ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट छोड़ो, पर ये बताओ कि अभी कितने राउटर्स पे रिप चल रहा है? अच्छा, इस पे भी चल रहा है, इस पे भी चल रहा है और इस पे भी चल रहा है, 3 पे चल रहा है। सो व्हाट डू यू वांट द वैल्यू टू बी एडवर्टाइज्ड एज 3 और यू वांट द वैल्यू टू बी एडवर्टाइज्ड एज 13, जो भी आप चाहते हो वो लिख दो, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, बस 16 मत लिखना, वो मैक्सिमम हो जाएगी, उसके आगे के राउट्स को इट वोंट लर्न एट ऑल, हाँ है ना। सो द वैल्यू यू कैन राइट इज वट एवर द वैल्यू यू वांट, राइट। लो अब जाना जरा R8 पर, डू शो IP राउट, देख लो। द नेटवर्क ऑफ 1 इज कमिंग एट द हॉप ऑफ 13, 23 इज कमिंग वाया 13, और 7 तो चलो इसको डायरेक्टली था, बट ऑल द रिप राउट्स आर कमिंग वाया द 13, क्योंकि मैंने वहां पर 13 एडवर्टाइज करा था इसलिए। कोई प्रॉब्लम इसमें? कैन वी एडवर्टाइज रिप वर्जन 1 विद रिप वर्जन 2? कैन वी redistribute rip version 1 with rip version 2? No, we actually cannot redistribute, but we just have to say is कि तुम आपस में सेंड और रिसीव कर लो वर्जन 1 और 2 दोनों से। इट इज नॉट रीडिस्ट्रीब्यूशन, इट इज जस्ट अ मैनिपुलेशन, राइट। Redistribution between OSPF and OSPF is not required, but redistribution between EIGRP and EIGRP is required, ठीक है। सबसे पहले तो R7 पर चलें, रेप वर्जन, रेप को EIGRP से करें रिडिस्ट्रीब्यूट, आ जाओ फिर। राउटर 7 बोलो, जरा सोचो समझो और बोलो क्या करें। राउटर रेप redistribute EIGRP 100, हाँ 200 है ये मैट्रिक। दोस्त मैं रेप के अंदर मैट्रिक बता रहा हूं, मैं रेप के अंदर गया और EIGRP को बता रहा हूं कि रेप को क्या पसंद है, समझे? नहीं समझे? देखो ऐसे समझ लो कि रिप जो है, रिप इज द बॉस एंड EIGRP वर्क्स अंडर द बॉस। EIGRP को आई विल से व्हाट योर बॉस लाइक्स। गुड मॉर्निंग, जाग जा, जरूरी टॉपिक है, जाग जा, ठीक है। redistribute EIGRP 200 metric is what you want to advertise, tell me। 30 नहीं हो सकता, सही है, हो गया। अब एग्जिट करो, अब आप जाओ दोस्त राउटर EIGRP 200 में एंड से redistribute rip what metric what, नहीं, k values is the metric for EIGRP, right? So friends, here you need to give the values if you want to find the real values of bandwidth, load, delay, reliability, MTU in EIGRP 200, then either on this serial 11 or on serial 11 of this router। देखो R6 पर जाओ, do show interface serial 11,
लो जी, बैंडविड्थ, एमटीयू, डिले, रिलायबिलिटी, लोड, सब कुछ है। बट आप चाहो तो यही वैल्यूज कॉपी कर दो। बट इफ यू वांट टू वैल्यू, if whatever the values you give, you can simply give these values, any value, 1 1 1 1 1, पांचों की पांचों वैल्यू मैंने 1 दे दी। whatever the value you give, it doesn't matter, but you just have to give some value। सही है, because by default in the metric calculation only k1 and k3 are counted, हाँ है ना। so whichever is the right value, उस वैल्यू को मैं 1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो नंबर तो वही आएगा। प्रॉब्लम क्या है इसमें, कर दो एंटर। तो वही तो मैं बोल रहा हूँ। तो बाकियों को भी आप कुछ मर्जी रख लो, बस आप बाकियों को जीरो नहीं रख सकते, आपको यहाँ पर वैल्यू एटलीस्ट 1 तो देनी पड़ेगी। समझे समझे। अब राउटर 7 पे आई डिड द रीडिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन रिप एंड EIGRP। नाउ राउटर 6 पे आई विल डू द रीडिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन EIGRP 200 एंड EIGRP 100। अब वो देखो कैसे है। राउटर 6, फ्रेंड्स सिंपली स्पीकिंग, you want to redistribute the EIGRP with EIGRP, हाँ है ना। तो you can do this, router EIGRP 100, redistribute EIGRP 200, enter। You don't need to give the metric values। जाग जा, जाग जा। You do not give to you do not have to give the k values, because EIGRP 100 will also follow the k values, and EIGRP 200 will also follow the k values, हाँ है ना। But if you want to give, then you can give। देख लो, अब की बार चलो EIGRP 200 में और रीडिस्ट्रीब्यूट EIGRP 100 metric, whether you give, whether you don't give, it doesn't matter। Am I clear? Good। Now राउटर 5 बच गया लास्ट। राउटर 5 पे 1 लेग इज इन OSP, 1 लेग इज इन EIGRP, हाँ है ना। अब दोस्त राउटर 5 पे मैं कुछ भी अपनी इच्छा से नहीं लिखूंगा, चाहे आप गलत बोलो तो गलत लिखूंगा, सही बोलोगे तो सही लिखूंगा। बोलो। हाँ ओके, हाँ सबनेट्स, दैट्स इट, दैट्स इट। अब देखो, यू ऑल्सो वॉन्ट टू ऐड कि भाई ये वैल्यूज मुझे EIGRP 100 से मिल रही है ना, तो ये लो टैग, या टैग मुझे याद दिलाना, बाद में करूंगा मैं, ठीक है। टैग वाली चीज बाद में दिखाऊंगा मैं। अब मैं जाऊंगा वापस राउटर EIGRP 100, redistribute OSPF 100, metric is done। अब देख लो जरा, राउटर 4 पर जाओ और डू शो IP राउट। क्या राउट्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं? आ रहे हैं ना। अब देखो जरा, डू शो IP प्रोटोकॉल्स, सॉरी नहीं, डू शो IP OSPF डाटाबेस। सी फ्रेंड्स, के टाइप 5 LSA लर्न हो रहे हैं उसको। टाइप 5 LSA के आगे टैग क्या है? 0 है ना सब पे। ये देख लो, सभी पे सभी पे सभी पे 0 है, हाँ है ना। ठीक है, अब ये लो राउटर 5 पे लेट मी से EIGRP 100, टैग यहाँ नहीं काम करेगा। राउटर OSPF 100, redistribute EIGRP 100, subnets, metric, type 1, टैग कर दिया। अब आप जरा जाओ वापस राउटर 4 पर और रन करना जरा।
जो जो राउट्स उसको रीडिस्ट्रीब्यूशन होके लर्न हो रहे हैं, ऑल दोज राउट्स आर गेटिंग अ वैल्यू ऑफ 100। अब भैया ये जो नेटवर्क्स उसके खुद के OSPF डोमेन में है, दो राउट्स विल नॉट बी शोन बाय द टैग बट द अदर्स विल बी शोन बाय द टैग, सो यू कैन सी एंड यू कैन इजीली जज दैट यस और नो। यू कैन सिंपली सी कि ये वाला राउट नहीं आ रहा, जो राउट मेरे पास रीडिस्ट्रीब्यूट होकर आना चाहिए था वो वाला राउट मेरे पास नहीं आ रहे हैं। कोई प्रॉब्लम? क्लियर है ये चीजें? अब हाँ, वर्चुअल लिंक्स। भाई यहाँ पर राउटर 2 टू राउटर 3 आई शुड क्रिएट अ वर्चुअल लिंक, एंड फ्रॉम राउटर 3 टू राउटर 4 आई शुड क्रिएट अ वर्चुअल लिंक, हाँ है ना? सी, राउटर 3 एरिया 13 इज नॉट कनेक्टेड विद एरिया 0, इन दोनों के बीच में एरिया 1 आ रहा है ना। सो फ्रेंड्स, आई आई वांट टू क्रिएट द वर्चुअल लिंक विद R3, राइट, क्योंकि R3 की एक लेग इज इन एरिया 13, हाँ है ना? But one more thing, which should be the other router? The other router should be ABR. Yes or no? Now friends, R2 is an ABR or not? ये मेरे को iOS कैसे दिखाएगा? Do show IP OSPF, ठीक है? It is an area border router. Yes or no? Yes or no? चलो फिर वर्चुअल लिंक क्रिएट करते हैं यहाँ पर। राउटर 2 पे लेट्स क्रिएट अ वर्चुअल लिंक। राउटर OSPF 100 एरिया 1, पहले हम लिखेंगे कौन से एरिया से आई एम गोइंग, राइट? आई एम मूविंग वाया एरिया 1, एरिया 1 से आई एम मूविंग ओवर अ वर्चुअल लिंक विद 3.3.3.3। फर्स्ट ऑफ ऑल बी श्योर कि राउटर 3 की राउटर आईडी यही है। कैसे? डू शो IP OSPF। क्या है ये? सही बात है। चलो फिर कर दिया ना क्रिएट। अब राउटर 3 पर जाकर भी क्रिएट करूं? देख लो, डू शो IP OSPF वर्चुअल लिंक, इट्स डाउन, कॉस्ट इज 65535, हाँ है ना? नाउ गो टू राउटर 3 और राउटर 3 पे यू विल से अगेन राउटर OSPF 100 एरिया 1 से इट इज अ वर्चुअल लिंक विद 2.2.2.2, हाँ या ना? अब रन करना जरा ये कमांड, डू शो IP OSPF वर्चुअल लिंक, डाउन, हो गया? is up, cost is using 64 point to point, hello has been suppressed, hello time is 10, dead time is 40, right or wrong? वही सब चीजें हैं सेम टू सेम, ओके। अब राउटर 2 पे यू कैन ऑल्सो, राउटर 2 पे या राउटर 3 पे, बोलो किस पे? 3 पे यू कैन से डू शो IP OSPF neighbors. Now it has got 3 neighbors, R1, R3 and R3 over the virtual link as well. Oh sorry, R2. R3 has got R2, R4 and R2 over the virtual link as well. देख लो 2, 2 and 4. 2 is via serial, 4 is via serial and this is via OSPF virtual link 0. हाँ है ना? ठीक है। अब राउटर 3 पे एक और वर्चुअल लिंक भी क्रिएट, राउटर OSPF 100 एरिया 13 via the area 13 I'm creating a virtual link, हाँ है ना? एरिया 13 से वर्चुअल लिंक विद, हो गया? अच्छा, अब राउटर 4 पे चल लो, राउटर OSPF 100 एरिया 13 से वर्चुअल लिंक विद, डन है? ये लो, वापस जाना R3 पर और करो कमांड रन, हो गया? to show IP OSPF virtual link,
आप पे भैया ये तो VL0 है, आपको ऊपर वाला है ये 4444 इज आप वर्चुअल लिंक 1, दोनों के दोनों आप पे हेलो सप्रेस्ड है। अब आप यहाँ पर करना डू शो IP OSPF नेबर्स। अब इसके 4 नेबर हो गए हैं, हाँ या ना? बस तो फिर अब राउटर 4 पर चल लो, राउटर 4 पे रन डू शो IP OSPF। सही है। नाउ R5 पे देख लो, डू शो IP OSPF। इट्स अ ऑटोनोमस सिस्टम बाउंड्री राउटर, हाँ या ना? यही चाहते थे, आ रहे हैं? अब मेरे को बताओ, R1 पे द राउट्स ऑफ EIGRP 200, the routes of 76, yeah, 200, sorry, the route of 6, let's say, ठीक है, the route of 6 will be learned via which way, this way or the other way? बताओ। OSPF से क्यों? मेट्रिक वैल्यू क्या करेगा? AD value of OSPF is lesser than the show IP route, the network of 6 देख लो कहाँ है, वाया 12112, मतलब यहाँ से तो दोस्त अगर इसको ऊपर से लर्न होगा तो द AD वैल्यू इज 110, एंड इफ इट इज लर्निंग फ्रॉम हियर देन द AD वैल्यू इज 120 बिकॉज रिप का, तो ऑब्वियसली द लोअर AD वैल्यू विल बी प्रेफर्ड और नॉट? ओके, नाउ दिस नेटवर्क दिस राउटर R6 will be learning the routes of 45 from, या 4 from, ओके देखो जरा, द नेटवर्क ऑफ 4 ना, हाँ। भाई यहाँ से तो ये इस राउट को लर्न कर रहा है, चाहे ये 4.4.4.4 को, it doesn't matter whether it learns from here, then also it's learning from the EIGRP external, right, from the other routing domains, and if it even if it learns from here then also it's learning via rep, तो दोनों साइड से सेम है, तो दोनों साइड से जहाँ से मेट्रिक वैल्यू कम होगी उसी को करेगा। आप देखो उसको चेक करने के लिए शो IP EIGRP टोपोलॉजी ऑल लिंक्स, द नेटवर्क ऑफ 4 दिख रहा है, ये रहा, सही है ना? तो नेटवर्क ऑफ 4 को जहां से उसको मेट्रिक वैल्यू कमाएगी उधर से वो लर्न करेगा, कोई प्रॉब्लम? देख लो ना यार, सिंपल देखो, यहाँ से तो हो गया लोवेस्ट बैंडविड्थ, यहाँ से यहाँ तक लोवेस्ट बैंडविड्थ वुड बी 1544, वो तो इस रास्ते से भी लोवेस्ट बैंडविड्थ वुड बी 1544, राइट और रॉन्ग? बट द अदर थिंग, कॉस्ट, राइट, सम ऑफ कॉस्ट, तो फ्रॉम हियर 20,000 प्लस 20,000 एंड फ्रॉम हियर 20 प्लस 20 प्लस 20 प्लस 20 प्लस 20 प्लस 20, तो ये तो बहुत बड़ा हो गया ना यार, हाँ है ना? ये होगी टोटल कॉस्ट 1,20,000 और ये टोटल कॉस्ट होगी 40,00,000, 40,000 कौन सी कम है? तो ऑब्वियसली इस वाले रास्ते को रेकमेंड करेगा नॉर्मल मैथमेटिक्स के हिसाब से, भाई 10⁻7 डिवाइडेड बाय लोवेस्ट बैंडविड्थ प्लस सम ऑफ डिले, राइट, डिले इज फ्रॉम हियर डिले इज 40,000 एंड फ्रॉम हियर डिले इज 1,20,000, तो ऑब्वियसली यार दूसरा वाला ही रेकमेंड होगा कि नहीं होगा? yes, sir. कुछ पूछना है इसमें? रिडिस्ट्रीब्यूशन समझ में आया? श्योर? चलो R1 पर चलो, पिंग करना, हो रहा है ट्रेस राउट 12 23 34 45 65,
राइट, मतलब 12, 23, 34, 45, 65, हाँ या ना। अब राउटर 6 से राउटर 1 पे पिंग करना जरा, हो रहा है ट्रेस राउट 65, 45, 34, 23, 12, मतलब रिवर्स पाथ भी वो यही वाला फॉलो कर रहा है ना। That's it. और राउटर 7 से राउटर 8 या राउटर 7 से राउटर 1, सॉरी जी, सही है। राउटर 7 तो डायरेक्टली 17, 18 होकर ही जा रहा है। अब राउटर 1 पे देख लो, ले भाई, हाँ जी, मतलब राउटर 1 को अगर 7 के पास जाना है तो राउटर इस राउट को घूम के जा रहा है भाई, क्योंकि इधर से एडी वैल्यू 120 लर्न हो रही है और इधर से एडी वैल्यू उसको 110 लर्न हो रही है और यहाँ से 120, तो 110 वाली सही है। तो वापस जा रहा है तो यहाँ से ये देखेगा इसको रिप से लर्न हो रही है, राइट, तो रिप अगर इसको यहाँ से जा रहा है तो फिर ये सीधी सी बात देगी ना भाई सेकंड हॉप पे है, तो आई विल गो बाय द सेकंड हॉप, सिंपल सी बात है, हाँ है ना। मतलब भाई इसको इतना बड़ा रूट नहीं फॉलो करना पड़ेगा वापस रिप्लाई के लिए, ये शॉर्टेस्ट पाथ निकालेगा अपना, हाँ या ना। बस दोस्तों दैट्स ऑल अबाउट रीडिस्ट्रीब्यूशन। कर दूं स्टॉप वीडियो। द नेटवर्क्स ऑफ 9, 91, 1 एंड 12 आर इन स्टैटिक। तो मैंने राउटर 1 पे क्या करा है, 9 के लिए तो मैंने मैनुअली कमांड डिफाइन करी है, राइट, और बाकी व्हेनेवर यू वांट टू गो टू एनी इनडायरेक्ट नेटवर्क गो टू 12.112, दैट मीन्स एक मैंने डिफॉल्ट राउट जनरेट कर दिया यहाँ पर, ठीक है, यही करा हुआ है। अब R2 पर भी देख लो OSPF 100, OSPF एरिया 0 वर्सेस स्टैटिक। आईपी एड्रेसिंग है, ये देख लो, रीडिस्ट्रीब्यूट स्टैटिक मैट्रिक टाइप 1 सबनेट्स, सही है, सही है। और फिर नेटवर्क सारे के सारे डिफाइन करे हुए हैं, पैसिव इंटरफेस इफ यू वांट टू क्रिएट देन यू कैन क्रिएट। और फिर मैंने क्या करा है, 1, 9 और 91 के लिए 12.1.1.1, 9, 91 और 1 फॉर दीज थ्री नेटवर्क्स 12.1.1.1, दैट मीन्स दिस वुड बी द नेक्स्ट ऑफ आईपी। डन है, बाकी सारा काम वही है, नॉर्मल जो हमने बाकियों में करा है वही सारा। अब बस स्टैटिक के ऊपर एक बात है कि फ्रेंड्स इफ यू आर पिंगिंग देन यू हैव टू जनरेट अ डिफॉल्ट राउट एज वेल। इफ यू हैव नॉट जनरेटेड द डिफॉल्ट राउट तो फिर राउटर 1 को तो सिर्फ और सिर्फ स्टैटिक चल रहा है ना उस पे, तो इफ राउटर 1 इज रनिंग स्टैटिक तो दैट मींस व्हाटएवर द नेक्स्ट नेटवर्क इट रिसीव, व्हाटएवर द redistributed routes it receive, right, for whatever the source network is redistributed route ना, तो redistributed network मतलब EIGRP या OSPF डोमेन का कोई भी नेटवर्क अगर राउटर 1 के पास आ गया पिंग, राइट, तो राउटर 1 के पास तो राउट होना चाहिए ना उसको रिवर्स राउट, ताकि राउटर 1 उसको डेस्टिनेशन में पहुंचा भी सके, हाँ या ना। फॉर दैट फ्रेंड्स यू नीड अ डिफॉल्ट राउट ऑन द मिड राउटर। R1 पे यू नीड अ डिफॉल्ट राउट बट R2 R9 पे यू डोंट नीड, बिकॉज उसके तो एक लेग पे रिप ऑलरेडी चल रहा है ना, एंड राउटर 2 के एक लेग पर OSPF ऑलरेडी चल रहा है, दे विल मेक इट हैपन, बट ऑन राउटर 1 इट कैन नॉट बी, हाँ क्या ना। तो फ्रेंड्स ऑन राउटर 1 यू हैव टू जनरेट अ डिफॉल्ट राउट, वो आप चाहे इस साइड जनरेट करो चाहे उस साइड, लेकिन सिर्फ किसी एक ही साइड जनरेट करो, दोनों साइड नहीं, समझ गए, दैट्स इट। दोनों के दोनों प्रैक्टिकल ले जाना मुझसे, और बताओ। नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। कैसे हो जाएगा लूप जनरेट, मेरे को ये बताइए। दोस्त लूप तब जनरेट होता है 9.9 के लिए तो मेरे को मैन्युअली कमांड है, तो हाईएस्ट प्रीफिक्स वुड बी मैच्ड। 9.9.9.9 के लिए तो आई हैव गिवन इट /32, देख जरा दे रखा है मैंने, तो वो डायरेक्टली वहां से सेंड करेगा। एक मिनट भाई, एक मिनट रुक जा,
9 के नेटवर्क का अगर मेरे पास सोर्स लग के आ रहा है तो आई नो दैट इन व्हेनेवर आई वांट टू गो टू 9 आई जस्ट हैव टू गो आउट फ्रॉम सीरियल 10 फ्रॉम दिस इंटरफेस, राइट। बट अगर मुझे किसी दूसरे नेटवर्क का राउट लग के आ रहा है तो मुझे नहीं पता ना मुझे कहाँ जाना है, तो उस केस में मैं इसको फॉलो करूंगा 0000 को। अब बोल क्यों होगा भाई? मैंने अभी अभी क्या बोला? जिस टाइम मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ आंसर बता रहा हूँ आपको, जो आपका अगला क्वेश्चन है मैं उसका आंसर बता रहा हूँ, आप पहले से क्वेश्चन वही लेके बैठे हुए हो। मैंने अभी क्या बोला कि हाईएस्ट प्रीफिक्स मैच को पहले देखेगा वो। 9.9.9.9 के लिए आई हैव वन रूट इज दैट व्हेनेवर यू वांट टू गो टू 12.112 एंड द अदर राउट इज कि इस पर्टिकुलर के लिए हाईएस्ट प्रीफिक्स मैच है मेरे पास, हायर प्रीफिक्स मैच है ना उससे, तो मैं उस वाले को फॉलो करूंगा। मैंने वही आंसर दिया, तो पहले क्वेश्चन सोच के बैठा ही, मैं तो पूछूंगा ही पूछूंगा, बता लेते जितना मर्जी। सुन तो लिया करो एक बार। हाँ लूप बनेगा बेटा। अब भाई तेरे को पता है कि तेरे को इस कमरे से बाहर जाना है, तू इधर से भी जा सकता है, इधर से भी जा सकता है। अब तू 2 कदम उधर बढ़ाएगा, 3 कदम इधर, फिर 3 कदम उधर, फिर 2 कदम इधर, फिर 3 इधर, 2 इधर, 2 इधर, 3 इधर, जब तक तेरा टीटीएल एक्सपायर नहीं होगा। क्या फायदा उसका? हाँ जी, और कुछ कोई डाउट है? पोस्ट